Hello, welcome to the channel. Let's have the analysis. Before that, we will just try to look the stocks today. So we had a trade in the Techem. That's just like 1:5 trade. We booked it around 1:2 session. Trailable 1:4. That's perfect with me because it was giving the breakout. Then we have Infi. Infi was done auto square off. I forgot about it, and it gave me believe 1:5. If you can see, in the morning sessions live, whatever you say, stocks live trading, you can see the video there. How did I entered here? How did I enter here? You know, uh, and that's it. In the next session, you can see the Adani ports. That gave me SL. I knew this is gonna be a trap. It's perfect with me. Then we have a Bajaj Finance that also worked at the end. If you can see that much, I knew that pullback will come there over there, but as soon the market performed very good candle here. If you can see, you can go to the video section in the live trade. You can see this candle. I was expecting this kind of candle. I said when 1000 will move, we can go for 998.5 exactly. Market go went there, and then after that it fell more. That's the extra part. But what happened to my fucking room heater? This guy is just bullshit. Okay, wait a second, huh? It's just not that much good. Okay. Then we have another one here. If you can see the TCS went not that much good. I knew this is gonna be a fake breakout session. The 15-minute candle was looking very good. That's why I was eager to buy this one, but it's fine with me again. Then we had Infi, we had that Daniport, we had Grasim, we have Grasim. Where is the Grasim? Grasim gave us around 1 is to 0 point something. I don't remember that much. Maybe 1 is to 0.67. Okay, and after that we had a stop loss. So that's it in the stock section. There was nothing else specifically more than stocks does not move that much individually because these guys have levels to respect. At the end, these comes see your directions should be good. Okay, that what's matter. I was going to buy, okay, I was going for selling in the Grasim comes for sale. I was going for selling in the Adani ports. I knew this is not gonna be working anymore. It just gave me punishment. That's fine with me. Bajaj Finance, even you can go into the video session. I said I just entered very wrongly there because this is already the third candle in the 15 minute. There will be a pullback there, and then the market gave the same structure, fell very nicely. So yeah, it happens with us. That's why market is the goat. They say goat is goat. Okay, TCS was very bad. This guy is just fucking bullshit guy. Then I'm gonna be pulling down these stories on the section. I'm gonna be going here. Okay, let me see one more. Okay, उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है. Tata Steel, if you can see, Tata Steel, look at that. Okay, look at that. I said one negative candle, that's enough for me. If in this region, in this region I will get a negative candle like this one, I'm gonna go for sell and I'm gonna hold this guy, and believe me, this just went awesome because there was a selling pressure easily. अगर इसके पीछे का कॉज देखना चाहोगे ना, तो यहाँ पे क्या था, एक सेल प्रेशर आपको दिखा था, मार्केट होल्ड कर रहा था अपने आप को, एक बार फिर नीचे की तरफ को सेल की प्रेशर हमको देखने को मिला है. काफ़ी शार्प फॉल हो रहा है मार्केट, ये भी चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है. यहाँ पे क्या चल रहा है, एक सेकंड ना, इसको भी देख लेता हूँ. गोल्ड अभी थोड़ा बहुत वेट करने वाला है, टाइम स्पेंड कर रहा है और कुछ भी नहीं. इसके अलावा XUSD कुछ भी नहीं है, टाइम स्पेंड कर रहे हैं सभी. BTC काफ़ी अच्छे से रिट्रेस हो रहा है, अभी भी नेगेटिव ही है, पॉजिटिव जोन में तब तक नहीं है अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन में हायर आई के लिए दिखता है. तब तक मैं ये टेल के लिए ट्राई करना चाहूँगा और या स्ट्रैंगल करना चाहूँगा इसी पोजीशन पे. बट कॉल शॉट अभी करना प्रेफर रहेगा जब लोअर की तरफ को मार्केट प्रेफर होगा. टाटा स्टील ओके फाइन विद मी, क्योंकि इतना देर तो मैं मुश्किल ही बैठता हूँ, चुलूने काटते हैं मुझे. काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला था यहाँ पे. 15 मिनट में एक रेंज थी, उसका ब्रेकआउट हुआ. स्टॉप लॉस आपको 5 मिनट के अकॉर्डिंग रखना चाहिए था और उसके बाद काफ़ी अच्छे ढंग से ये मूव किया है. अगर मैं बताऊँ स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द गाइज विल थिंक ना कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है. देखो मैं बताता हूँ. यहाँ पे एक तो पहली बार ट्रेंड लाइन दिख रही है, पोलैंड फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न है, ठीक है.
पहला ट्रेड आपका एग्जीक्यूशन होना चाहिए इस वाले कैंडल पे जो ये बन रखा है, ठीक है, ये वाला कैंडल। अगर यहाँ पे आप श्योर नहीं हो, सर्टेन नहीं हो, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत ट्रेंड लाइन में इशू होगा यहाँ पे, तो आप ये वाले कैंडल में एंट्री ले सकते हो। बट बिलीव मी, मैं उस सेटअप के लिए तो नहीं बैठा था। ये ट्रेंड लाइन मुझे हालांकि दिख जाती और मैं बिलीव मी यहाँ पे मैं स्टॉप सेल करके इधर स्टॉप लॉस लगा देता। फाइन। सेकंड क्या होना चाहिए, जब यहाँ पे ये पॉज लिया ना, एग्जैक्टली यही कैंडल पे आपका काम हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस समवेयर इसके अराउंड, और उसके बाद आराम से होल्ड करो, क्योंकि काफ़ी अच्छे ढंग से नेगेटिव साइड को दिख रहा था। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। ओके, टाटा स्टील इज इन द बाइंग जोन। ओके लेट, बट ये तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं ना एक दो बार, काफ़ी अच्छे से नीचे जा रहा है, अभी भी सेल प्रेशर के लिए नीचे जाएगा। तो कल एक्सपायरी है, इसीलिए मैं इधर आया हुआ हूँ। 5 मिनट 35 सेकंड ऑलरेडी रिकॉर्ड करते करते हो चुके हैं। अगर हम अभी चलते हैं फायर्स के सेशन में, वहाँ देखते हैं कि क्या चल रहा है। चुप, फायर्स वाले क्या कर रहे हैं तब तक। यहाँ पे कुछ है क्या, प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं है। वाई लुक में कौन कौन था ये, ठीक है, एनटीपीसी ना, नाइस। एनटीपीसी हमने देखा भी था और उसमें नेगेटिव मैंने बोला भी था कि यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, जोन बड़ा ख़राब है, बट इस जोन में मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है। इधर अगर इस लो तक तो एटलीस्ट मार्केट आएगा और मार्केट इस लो को भी क्रॉस करेगा। एक बार थ्रूली एनालिसिस करेंगे, पहले हम चल के देख लेते हैं। एक टेकम में एक और ट्रेड मैंने लिया था, वो अराउंड ये कैंडल पे मैंने लिया था, ठीक है, 1:1.14 का ट्रेड था शायद से। यहाँ पे मैंने ये ट्रेड लिया हुआ था, मेरा एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छा था 95.5। और उसके बाद मार्केट, ये सिर्फ क्या था ना, मैं इसमें एक लॉजिक सिंपल समझाता हूँ। हमेशा एक चीज़ ना सिर्फ बायर्स के लिए नहीं होती, उसमें बायर्स भी होंगे मार्केट में, सेलर्स भी होंगे। इसीलिए क्या दिया रखा है ऊपर, ये दिख रहे हैं आपको सेल और बाय का बटन। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ बाई का बटन ही आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स भी बैठे होंगे। सेलर्स कब आना जाएंगे, जब देखो ये बायर्स यहाँ पे एग्जिट करना प्रीफर करेंगे, उनके साथ में सेलर्स आना प्रीफर कर सकते हैं, या इंडिविजुअल किसी रेजिस्टेंस में आना प्रीफर कर सकते हैं। अगर समवेयर में इस लेवल पे कहीं पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है, मार्केट काफ़ी अच्छे ढंग से मूव कर रहा है, पुल बैक दिया मूव किया, पुल बैक दिया मूव किया। अब मुझे दिख रहा है कि इस कैंडल के, अब देखो प्राइस एक्शन समझो, इस कैंडल के साइज से इस कैंडल का साइज मुझे छोटा दिख रहा है, ठीक है, यानी कि बायर्स इसमें इंटरेस्टेड हैं बट लेस इंटरेस्टेड है। कैंडल आया लेस साइज, कैंडल आया लेस साइज। अब मुझे दिख रहा है कि हर कैंडल के ऊपर से क्या हो रहा है, रिजेक्टेड वीक दिख रहा है। एक नेगेटिव कैंडल दिखा, मैंने मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया समवेयर इस लेवल पे, क्योंकि प्रेशर काफ़ी अच्छा दिख रहा था। मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रहा था, फ्लक्चुएट नीचे की तरफ को। एक अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग समझोगे तो वेट कर रहा है नीचे, वेट कर रहा है नीचे, ऐसा काइंड ऑफ प्राइस एक्शन चल रहा था। यूजुअली ऐसा नहीं होता है। तो उसके बाद मतलब बाइंग में ऐसा नहीं होता, फ्लक्चुएट नीचे, फ्लक्चुएट नीचे, क्या करता है नीचे आता है, फिर ऊपर से स्लो एंड स्टडी अप साइड जाना प्रीफर करता है। बाइंग का पैटर्न है। अगर यहाँ पे देखेंगे मार्केट नीचे की तरफ को आना स्टार्ट हुआ, मैंने समवेयर यहीं पे एंट्री ले लिया था, और जब ये कैंडल मुझे मिल गया था नेगेटिव, मेरा टारगेट था ये रीजन 95 वाले के आसपास मार्केट आ जाए। आ गया, मैंने बुक किया, कहानी ख़त्म, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक मैं इसको भी रख लेता हूँ। अगर हम लेफ़्ट सेक्शन में देखेंगे, इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ, उसके बाद दो चार्ट्स रखते हैं। हाँ ठीक है, निफ्टी 50 में अगर हम देखेंगे ना, तो मैंने समवेयर इस पॉइंट पे कहीं पे कॉल शॉट किया था, सॉरी पुट शॉट किया था, काफ़ी अच्छा गया, उसमें मुझे पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। फिर एक रेंज प्रीफर हुई, और इस पॉइंट से तो शायद ही मैं कुछ करता, बट मतलब वेट करता ज़्यादा से ज़्यादा। बट जब ये कैंडल बनाए यहाँ पे, ये वाला रेड, तो मेरे लिए अलर्ट काफ़ी अच्छा था। उसके बाद समवेयर जब ये मार्केट यहाँ पे, मैंने बोला था उस टाइम पे कि ये गैप सपोर्ट नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि मल्टी टेस्टेड हो चुका है। उस टाइम पे मार्केट मतलब सुबेरे के टाइम पे, यानी कि जब ये प्राइस एक्शन काइंड ऑफ थिंग बन गई थी, तो मार्केट ने समवेयर ऊपर की तरफ को एक पुल दिया, यानी कि गैप ने वर्क किया। उसके बाद सेम यहीं पे जो बायर्स बैठे हुए थे, ये कैंडल बिलीव मी वन ऑफ द स्वीटेस्ट थिंग, अगर मैं होता ना तो मैं एग्जैक्टली इसी टाइम पे बाइंग यहाँ पे करता, ऑप्शन बाइंग, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि टारगेट काफ़ी अच्छा है, 26,000 तक मैं इजीली आ सकता हूँ। 50 पॉइंट यहाँ पे ही मुझे मिल रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग अगर करनी होती तो करता मैं। ये कैंडल जो है ना इंडिविजुअल, इसी कैंडल ने सब कुछ गेम पलट दिया होगा ऑप्शन बाइंग वालों के लिए। अगर आप एक सेकंड, ये क्या था, अगर आप चल के देखोगे ना निफ्टी सी का, अगर आप यहाँ पे चार्ट देखोगे तो इस कैंडल में 110 से लेके ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का मूव हुआ है। और आप बिलीव मी, यहाँ पे अगर मैं पुट लगाता हूँ उस टाइम पे 26 ओ 50 ना, ओ 50 देखते, ओ सॉरी चेंज इंटरवल 26 ओ 50 का पुट ना, ठीक है। आप अगर इस पुट के देखोगे तो मैं क्या पुट के देखोगे, पुट को देखोगे तो समवेयर एंट्री ये कैंडल पे होना चाहिए था, क्योंकि आप मैच करके देखोगे तो सेम यहीं पे लेफ्ट में आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा। टाइम लाइन देखेंगे 2 PM,
2 PM का कैंडल कौन सा है, सॉरी, एंट्री हमारा होना चाहिए था समवेयर, प्राइस होना चाहिए था 65, 62, 63, 63, और स्टॉप लॉस जो होना चाहिए था 53, इसी कैंडल के लोज के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए था। और लुक एट दिस वन, ओके, इस कैंडल को देखो, इसका इंडिविजुअल प्राइस 63 से ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स अप हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट, ये क्या होना इशू क्या होता है, यहाँ पे डिके ज़्यादा होता है, ऑप्शन सेलिंग में डिके आपको कम देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको डिके ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अपॉर्चुनिटी अगर आप अच्छे से बैठोगे, जो कि मैं अभी नहीं बैठ सकता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी देखने को मिलती है। 3 ट्रेड्स अ डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आपको चीज़ें समझना है, जब आपको ट्रेड दिख रहा है आपको ले लेना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने सुबह ही बोल दिया था कि मल्टी टाइम टेस्टेड हो चुका है, ये सपोर्ट क्या है, मल्टी टाइम टेस्टेड हो चुका है यहाँ पे। तो मार्केट क्या करेगा, अगर यहाँ से लोग निकलना स्टार्ट करेगा तो मार्केट ट्राई आउट करेगा कि 25,900 ना जाए भले ही, बट एटलीस्ट 26,000 को तो वो क्रॉस करेगा ही करेगा। जब 26,000 क्रॉस होता है, राउंड नंबर क्रॉस होता है, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम होता है, ठीक है, 25-30 पॉइंट का एक मोमेंटम देखने को मिलता है, खास करके जब बायर्स एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, मतलब बायर्स स्टॉप लॉस सेट कर रहे होंगे तो क्यों नहीं। अभी अगर हम चल के देखते हैं, इसको मैं हटाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो मैंने एक चीज़ पहले भी बोली थी कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिनेरियो अभी तो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे ये लेवल के आसपास हाई हमको क्रॉस होता हुआ नहीं दिखा है अभी भी। अगर हम इसको रेजिस्टेंस मानते हैं, नियर बाय रेजिस्टेंस में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता हुआ अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे समवेयर या तो होल्ड करने वाला है, द पैटर्न इट इज़ इन, बिलीव मी, यहाँ पे मार्केट होल्ड करने की ट्राई कर रहा है और उसके बाद ही समवेयर अपसाइड को मोमेंटम कर रहा है, वीकली ऐसा बता रहा है। क्योंकि देखो, अगर इसको नेगेटिव आना होता ना, तो ये इस पॉइंट पे काफ़ी अच्छा स्कोप था इनके पास, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, समवेयर फेक ब्रेकआउट यहाँ पे भी देखने को मिल सकता था, बट मार्केट ऑलरेडी उस पॉइंट से रिकवर हो चुका है। तो मैं सेलिंग की तरफ को इंटरेस्टेड लेस दिख रहा हूँ। हाँ, बस ये हो सकता है कि इसी पॉइंट से फिर समवेयर हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, बट करंट सिनारियो में अभी भी सेलिंग की तरफ को इंट्राडे में दिख रहा है, बट ठीक है, जैसा भी है। डेली के टाइम फ्रेम में अगर चल के देखेंगे तो यहाँ पे एक दिख रहा है कि फेक ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिनारियो हुआ है, एक बाइंग का कैंडल हुआ था, इंस्टेंटली नेगेटिव फॉलो थ्रू मिला और अभी नेगेटिव पुश साइड हो रहा है, इसकी वजह से एक नेगेटिव हमको सिनारियो देखने को मिल रहा है। करंट कंडीशन में नेगेटिव है, मैं समझ रहा हूँ, बट इसके पीछे का अगर रीज़न आप देखोगे ना, यहाँ पे बायर्स आए हैं क्योंकि इन्होंने वेट नहीं किया, काफ़ी स्ट्रेंथ में यहाँ पे वेट किया, क्लोजिंग अच्छी नहीं दिखी है, फॉलो थ्रू बाइंग नहीं मिली है। तो अभी अगर इसको नेगेटिव आना होगा तो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंटम, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है इसके पास। अगर नेगेटिव आना है तो करंटली इस सिनारियो में इसको नेगेटिव आ जाना चाहिए, और बिलीव मी, यहाँ से अगर नेगेटिव आना ये प्रीफर करता है तो हमें काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट अगर ये कहीं ना कहीं समवेयर अपने आप को गैप अप मिलता है, इस पॉइंट पर कहीं पर भी गैप अप मिलता है, तो ये इनसाइड सेटअप बनाना प्रीफर करेगा, एक हल्क हमको इसके अंदर देखने को मिल सकता है, दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। हो सकता है उसके बाद ही मार्केट कहीं ना कहीं पुश करे, क्योंकि आपको प्राइस एक्शन एक हायर हाई का देखने को फिर से मिल जाएगा। कंटिन्यूएशन में भी तो इसमें बाइंग ही देखने को मिल रही थी, सेलर्स इसमें इतना आए नहीं थे। अगर 15 मिनट में चल के देखोगे तो अभी पहले एक आवरली में देख लो एक स्ट्रक्चर, जो ऑप्शन सेलर्स बैठे हुए होंगे, ठीक है। एक मेजर लेवल हमारे पास 25,750 का रीजन है, एक रीजन हमारे पास है आपका 25,900 ऑलमोस्ट, ठीक है। इस रीजन के जो बायर्स हैं ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो चुके हैं, जब यहाँ से फिर नीचे ऊपर गए, और नीचे भी ऑलरेडी टेस्ट है, तो अगर ये लेवल फिर से गिरना स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ा ईजिली गिरना प्रीफर करेगा मार्केट, ठीक है। समवेयर आप अगर बॉटम पे देखोगे तो ये लेवल आपको फिर से रिटेस्टेड कम दिखेगी, ठीक है, ये आए नहीं है, बट ये फ्रेश लेवल्स नहीं है अभी। तो मार्केट क्या करेगा, एक सेलिंग के प्रेशर में हमको इजीली दिख रहा है। 15 मिनट में अगर हम चल के देखते हैं अब एनालिसिस कि किसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करने वाले हैं, सिंपल सी चीज़ है, अगर मार्केट समवेयर फ्लैट या इसी रीजन में कहीं ना कहीं प्लस माइनस खुलता है 50 पॉइंट्स के आसपास, पहला टारगेट हमारे लिए क्या होना चाहिए, सेलिंग के साइड को होना चाहिए। हम सेल साइड को जाएंगे, हमारे लिए प्राइमरी जो टारगेट होना चाहिए 25,850 का रीजन, उसके बाद हम समवेयर ट्राई करेंगे कि 750 का रीजन हम क्लेम करें। अगर मार्केट सपोजिटली गैप डाउन खुल जाता है तो बिलीव में थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो सकता है, पहले प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, एक मार्केट सेलिंग के प्रेशर में आया, यहाँ पर सेलर्स बैठे होंगे, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, नहीं भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फेक ब्रेकआउट जैसा सिनारियो होगा और मार्केट क्विकली इस लेवल को छोड़ने में प्रीफर करेगा। तो दो सिनारियो, पहला ट्रेड हम क्या करेंगे कि वेट करना चाहेंगे, यहाँ पे अगर बायर्स डिफीट होते हैं तो हम नीचे की तरफ को यू टर्न में हमको एंट्री देखने को मिलेगी तो हम कर लेंगे, ठीक है, कि मतलब बायर्स आए और उनको हमने डिफीट किया, उनके साथ में हम नीचे सेलर्स, फ्रेश सेलर्स के साथ हम चलेंगे। सेकंड केस क्या होगा कि मार्केट समवेयर क्या ट्राई करेगा गैप फिलिंग करने का, यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख जाए तो उसके बाद भी हम नीचे नेगेटिव जा सकते हैं। अगर गैप फिलिंग हो जाती है तो थोड़ा सा वरीड सिनारियो तो नहीं, बट
हो सकता है कि मार्केट रेस्ट ऑफ द डे उसी कैंडल के आसपास कहीं ना कहीं रह के एक इन्वर्टर हैमर टाइप हमको दिखा दे और उसके बाद कहीं लीड करें नई डायरेक्शन के लिए। अगर मार्केट मान लो गैप अप खुल जाता है इस रीजन के ऊपर, ठीक है, 26,050 के रीजन के ऊपर कहीं गैप अप खुल जाता है, अपने आप को सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो उसके बाद समवेयर हम पहले तो हमें क्या करना चाहिए, इस ट्रायंगल टाइप ऑफ डे पे बिलीव रखना चाहिए। पर अगर उसके बाद सेकंड हाफ में या उसके बाद हमें समवेयर कहीं ट्रेड मिल रहा है तब जाके मुझे बाइंग की तरफ को प्रीफर रहना है। उससे पहले मैं बाइंग की तरफ को अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इतना कुछ बाइंग की तरफ को दिखेगा नहीं, क्योंकि सेलर्स अभी अच्छे बैठे हुए हैं। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, ये हालांकि ये लेवल काफ़ी टाइम टेस्टेड दिख रहा है हमें, बट जब भी ऊपर जाएगा थोड़ा वेट करते हुए जाएगा, तो ऑप्शन सेलिंग का डे ज़्यादा प्रीफर हो जाएगा। अगर ऑप्शन बाइंग इस वो होनी है तो प्रीफरेबल इसको फ्लैट खुलना चाहिए, एक सेलिंग की साइड को हमें स्कोप देखने को मिल सकता है ईजी। ओके, इतना ही था फिलहाल। अगर निफ्टी बैंक को देखेंगे, वाओ 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 वाओ, कितना पॉइंट है ये, 400-500 पॉइंट का सेल ऑफ, नाइस। शार्प सेलिंग आपको क्लियर कट दिख रही होगी। अगर गैप डाउन फॉलो थ्रू मिलता है तो ये सेलर्स क्या चाहेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करना, हल्का पुल होने के बाद, हमेशा ध्यान रखना, पुल होने के बाद फिर से एक सेलिंग का प्रेशर हमको दोबारा देखने को मिलेगा। और जब इतना बड़ा मोमेंटम हमें क्विकली देखने को मिला है ना, तो समवेयर कल सुबह भी एक ना कहीं वॉलेटिलिटी होने वाली है, उसमें भी हमें ट्रेड देखने को मिलेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप खुद को इस पॉइंट पर रख के देखो, आज अगर आपने ये ऑप्शन यहाँ पे मिस किया ना, तो कल सुबह आप भी बिल्कुल कूदते हुए जाओगे कि हाँ मार्केट कहीं ना कहीं मूव करने वाला है। तो कल ना हमें स्टार्टिंग के आवर में क्या देखने को मिलेगा, स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। मार्केट ट्राई आउट करेगा 58,500 रीजन में खुलने के लिए। गैप डाउन अगर इसके बिलो खुलता है, हम वेट करेंगे पहले फर्स्ट आवर में, मतलब क्या कर रहा है मार्केट रिएक्ट, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करने वाले हैं। अगर गैप अप खुल भी जाता है तो भी मैं गैप फिलिंग के लिए एक स्कोप देखना चाहूँगा। कुछ बड़ा होता है तो वेट करेंगे, क्वांटिटीज़ को रिड्यूस कर देंगे और इसी रीजन को स्ट्रैंगल करना प्रीफर करेंगे। इसके अलावा बैंक निफ्टी में कुछ दिख नहीं रहा है, और यूजुअली ये तो ऑल टाइम हाई से अपना नीचे नेगेटिव आना प्रीफर करता भी बहुत है। इसी चीज़ के बारे में मैंने यहाँ पे भी बात करी थी जब ये कैंडल बना था, कि जब भी बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करता है ना, उसके बाद ये क्या करता है, ट्राई आउट करता है नियरेस्ट स्विंग के पास जाने का या फिर से नेगेटिव होने का। तो ये इसके ब्लड में है। हमारे ब्लड में क्या है वो हम बाद में देखेंगे, बट इतना हमारे लिए बहुत था। अभी हम चल के एक बार के लिए देख लेते हैं कि निफ्टी 50 आज हमने जैसे बोला था क्या वैसे मूव हुआ है। मतलब सुबह हमने ट्रेडिंग सेशन किया था, उसमें आप देखना 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। विप्रो मैंने बोला था ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पे क्या करेगा, टाइम स्पेंड करने वाला है। मार्केट ने वही किया, क्योंकि इतना बड़ा बाइंग कैंडल आने के बाद कहीं ना कहीं वेट करने के बाद ही मार्केट मूव करना प्रीफर करता है। बायर्स इंटरेस्टेड नहीं रहते ना फ्रेश। ये ONGC में मैंने एक ट्रेड यहाँ पे बोला था कि जब ये टेल टच करने जाएगा मैं उसी के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा, उसके आगे नहीं। काफ़ी विक्स लगाया है इसने। पावर ग्रिड इजी ट्रेड, मैंने यहाँ पे क्लियर कट बोला हुआ था मार्केट ट्राई आउट करेगा कि 272 के रीजन तक आए। इतनी बड़ी बाइंग मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी, बट इट्स फाइन। नेक्स्ट NTPC में बोल चुका हूँ ऑलरेडी, उसमें देखना ये लोज तक का प्राइमरी टारगेट, और उसके बाद मार्केट समवेयर इसको ब्रेक करने के बाद लीड करेगा नीचे की तरफ। BPCL थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट इतना मैंने बोल दिया था उस टाइम पे भी कि ये रेंज जहाँ भी ब्रेक होगी उसी साइड को हम ट्रेड करने वाले हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एक्चुअली ये काफ़ी अच्छे गए हैं। कोल इंडिया अगर देखेंगे तो मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि ये पुल बैक दे रहा है, अपना फर्स्ट पुल बैक, इसमें जब भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेल करना। मे बी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, बट री एंट्री बहुत प्यारे ढंग से वर्क किया हुआ है। ITC इसमें मुझे कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, नेगेटिव आया, ठीक है। UPL समवेयर ना यहाँ पे जब ये कैंडल बनने था तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हुए होंगे बाइंग के लिए, बट मैंने फिर वहाँ पे देखना जाके बोला था कि अगर समवेयर ये सस्टेन करेगा उसके बाद ही इंटरेस्टेड होगा, नहीं तो ये नेगेटिव आ जाएगा। इतना बड़ा सेल ऑफ तो खैर मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था टॉप से, मैंने देखा नहीं था इसे। HDFC लाइफ अनइंटरेस्टेड, जाके देखना साफ साफ है कि इसके ऊपर जब तक क्रॉस नहीं करता कहीं भी रेंज में तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। सेम वही चीज़ में मार्केट अभी मूव किया हुआ है। हिंडाल्को मैं बाइंग की तरफ तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने कहा था ये गैप जब भी जाएगा स्लो एंड स्टडी अपसाइड को मूव करना प्रीफर करेगा, नहीं तो नेगेटिव आने में तो खैर इसने क्या ही महारत हासिल होती है। इंडसइंड बैंक अनइंटरेस्टेड, क्योंकि बाइंग गई थी। हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली थी, बाइंग गई है, ठीक है। अगर समवेयर मार्केट अपने आप को होल्ड करता है तब जाके कहीं बाइंग की तरफ को जाएगा, नहीं तो चांसेस हैं ये अपने आप को एक रेंज के अंदर होल्ड कर दे या स्ट्रैंगल टाइप ऑफ पोजिशन बना दे। SBIN वेट कर रहा है, इंटरेस्टेड भी नहीं था मैं। HDFC बैंक मैंने एक चीज़ इसमें साफ कही थी, यहाँ पे ध्यान रखना कि ये लेवल जो है मल्टी टेस्टेड हो चुका है, मार्केट ट्राई आउट करेगा समवेयर इस हाई तक पहुँचने का बहुत प्यारे ढंग से। ये कैंडल पे तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए 15 मिनट के लिए, और ये काफ़ी प्यारा गया है।
15 मिनट में इशू यही होता है ना काफ़ी सारे लोगों को। एंट्री का अगर मैं क्राइटेरिया बताऊं, इतना भी समझा देता हूं आपको क्या करना होता है। देखो कई सारे लोग सोचते हैं कि क्या एंट्री करनी है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, हमें तो आर टू आर नहीं मिल रहा है। देखो मैंने ये कैंडल पे आइडेंटिफाई किया, तो काफ़ी सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ एंट्री करके इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस दे देंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा राज खोल देते हैं। आपको शिफ्ट करना होता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में आप जब शिफ्ट करोगे तो नियर बाय जो सबसे आपको स्विंग टाइप ऑफ काइंड थिंग दिखेगी ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको इनसाइड सेटअप दिख रहा है। आप स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हो, नहीं तो आप स्टॉप लॉस क्या कर सकते हो, जो ब्रेक दे रहा है उस कैंडल पे रख सकते हो। फिर आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। एटलीस्ट 1:5 तो यहाँ पे भी है। टारगेट के अकॉर्डिंगली मूव करोगे तो ज़्यादा बेटर है। डॉक्टर रेड्डी, अगर अभी देखना मैंने इसमें कुछ बोला था डॉक्टर रेड्डी में, अभी आएगा ये। बजाज बोल चुका हूँ ऑलरेडी। मार्केट नेगेटिव था, काफ़ी अच्छे वेट किया, फिर नेगेटिव आ गया, तो इसमें मैं क्या ही बोलूँ। 990 का रीजन मेरे लिए टारगेट होना चाहिए था, ये भी शायद से मैंने बोल दिया होगा। 990 का रीजन मार्केट टैप कर दिया। टीसीएस तो खैर क्या ही बोलना, बेकार आदमी। जेएसडब्ल्यू स्टील ये मैंने मिस कर दिया था। एक्चुअली मैं खुद से ही नाराज़ था इस टाइम पे, जब इनिशियली ये मूव किया था मैं उसी टाइम मिस कर दिया था, और उसके बाद तो ये खैर सेलिंग की तरफ को बहुत प्यारे ढंग से फॉल हुआ है। काफ़ी अच्छे सेलिंग के स्टॉक्स थे यार आज, बट मैं ऑलरेडी हाथ मार चुका था। डॉक्टर रेड्डी एक बार जाकर देखना, यहाँ पे मैंने बोला था कि ये ना एक ही इशू दिख रहा है, ये गैप फिल नहीं हुआ है और ये बाइंग की तरफ को प्राइस एक्शन भले बना रहा है, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं था इसमें बाइंग के लिए। और क्या फॉल आया हुआ है भाई, नाइस। आधे स्टॉक्स इधर, आधे स्टॉक्स उधर। एक्सिस बैंक बाइंग की तरफ को दिख तो रहा था, बट लेस इंटरेस्टेड था मैं। नेस्ले, नेस्ले में मैंने कहा तो कुछ नहीं था क्योंकि ये टाइम वेस्ट बहुत करता है, बट ठीक है इसमें भी एक रेंज है, वो ब्रेकआउट किया। वॉलेटिलिटी तो इसके ब्लड में है खैर। आईसीआईसीआई अनइंटरेस्टेड था मैं। टेकएम मैंने कहा था, टेकएम में मैं क्यों इंटरेस्टेड था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा था समवेयर, और डेली में डब्लू भी बन रहा था, तो काफ़ी अच्छे ढंग से ये बाइंग में गया और मेरा काम ख़त्म हो गया था यहाँ पे। अडानी पोर्ट में एक्चुअली ना क्या ही करूँ मैं, मतलब यहाँ तक ही मार्केट आ सकता था इस लो को टेस्ट करने, फिर उसके बाद मार्केट ने डिसाइड किया कि वो स्ट्रैंगल करेगा, तो ठीक है क्या ही कर सकते हैं, जिसको जैसा मूड होगा। कभी कभी कुछ ना कुछ तो गलत होगा। रिलायंस वन इंटरेस्टेड था। सिप्ला में मेरे को सिप्ला का ध्यान नहीं है। इन्फोसिस तो मैंने किया हुआ है, मैंने बता भी दिया। बाइंग आई, वेट किया, फिर बाइंग आई तो ज़्यादा अच्छा था, बट ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, तो मार्केट समवेयर ट्राई आउट करता है एटलीस्ट इस लो को क्रॉस करने का। मैं छोड़ दिया था पूरे दिन भर, ये आराम से आया, ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया है यहाँ पे, तो इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। मैंने 3 PM पे इसको बुक कर देना था, 319 पे। HCL टेक में भी मैं सेम RTM पे इंटरेस्टेड था, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे आर टी ओ पे इंटरेस्टेड। RTO अच्छी, RTO कुछ नहीं करना। यहाँ पे इंटरेस्टेड था मैं, बट मैंने कहीं ना कहीं ये मिस भी किया, अवॉइड भी किया, क्योंकि मुझे वेट करना था प्राइस एक्शन का। ठीक है कोई बात नहीं। सन फार्मा वेटिंग पीरियड था तो मैंने वेट ही किया इसमें। बजाज फिंजर में मैंने एक ट्रेड ट्राई आउट किया था शायद से, मुझे ध्यान नहीं है, बट काफ़ी अच्छा था। SBI लाइफ एक्चुअली मैंने मिस कर दिया है। ओके मैंने मिस कर दिया है इसको। कहाँ पे मिस किया है मैंने? 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नहीं था सर इसमें, स्टॉप लॉस यहाँ पे था 25 पॉइंट्स का। 15 के अकॉर्डिंग भी मैं आज स्टॉप लॉस वही रखना चाहता है। ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लास्ट में आके जो इतनी बड़ी बाइंग दिया हुआ है ना, 4 डिस्टर्ब तो इसने कर दिया होगा खैर, पर कल साइडवेज जाने के बाद या गैप अप ये प्रीफर कर सकता है। इसमें मैं क्यों इंटरेस्टेड था, डेली के टाइम फ्रेम में अगर चल के देखोगे, वाह भाई ये कैंडल देख रहे हो आप, ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये गैप अप भी नहीं लेके आएगा। कल क्या हो सकता है, गैप डाउन के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं चार्ट के अकॉर्डिंग तो, क्योंकि लास्ट 5 मिनट में मूव किया हुआ है। एग्जिट करने का चांस भी मुश्किल ही दिए होंगे अगर एंट्री करते तो, बट ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो काइंड ऑफ क्या बाइंग के बाद मार्केट होल्ड कर रहा था। इस कैंडल में मैं इंटरेस्टेड हो गया था क्योंकि इसने क्या किया था, एक वेज टाइप ऑफ पैटर्न को ब्रेक किया था, तो ठीक है। बहुत काफ़ी बेकार चल रहा है चीज़ें, मैं सच बताऊँ तो। भारतीय एयरटेल एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक ही चीज़ बोली थी, ये हाई क्रॉस करके यहाँ तक जाना चाहेगा, उतना ही ट्रेड था, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था, क्योंकि बायर्स इंटरेस्टेड नहीं होंगे। कोटक बैंक में मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड था, आया ही नहीं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे रिकवर हो गई बाइंग, बाइंग बोला सेलिंग, और फिलहाल ज़्यादा दूर नहीं है हम। अडानी एंट उस टाइम अच्छा नहीं दिख रहा था। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी उतना खास नहीं है। एशियन पेंट्स वेटिंग पीरियड में था। ग्रासिम नेगेटिव था और नेगेटिव की ट्रेड भी लिए। TCS यहीं तक थी हमारी कहानी, बस MNM तक।
इसके पार हमको नहीं जाना था। M&M एक टाइम था जब M&M 1900 के रीजन में था, उस टाइम मैं इसको ट्रेड कर रहा था काफ़ी पसंद था मुझे। अभी ये सेलिंग की तरफ था, इसमें मैंने क्लियर कट बोला था ये टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद ही समवेयर कहीं मूव करना चाहेगा, ये लोगों को ट्राई आउट करेगा मार्केट आने के लिए। तो इतना ही है फ़िलहाल, काफ़ी लंबा वीडियो है आई नो, बट इसको अगर सिंक करोगे लर्निंग आपको अच्छी होपफुली मिलेगी। ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है काफ़ी चीज़ें सीखने के चक्कर में, पर नहीं मिला है उस हिसाब से कि क्या एंट्रीज होती हैं, क्या एग्जिट होती है, क्या प्राइस का मोमेंटम है। कई बार क्या होता है कि मतलब लोगों को देखा है करते हुए, बट रीज़न पता नहीं है, रीज़न पता है तो उसके पीछे का कॉज पता नहीं है, उसके बाद क्या हुआ वो पता नहीं है, रिसर्च खुद से करनी पड़ती है, मैं समझ रहा हूँ। इसीलिए आपको क्या करना है, एक वीडियो देखो, उसके साथ में पैरेलल चलो, उसके अकॉर्डिंग क्या करो, अपना क्या बोलते हैं, अपना एनालिसिस अब स्टार्ट करो कि कल से मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, क्वांटिटीज़ रिड्यूस रखो। मुझे देखो मैंने कितनी क्वांटिटीज़ कम रखी हैं, और क्या एंट्री कर रहा है आदमी का इमोशन कैसा है, क्या वो स्टॉप लॉसेस ले रहा है, क्या वो रिस्क टू रिवॉर्ड पर फोकस कर रहा है। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही सुप्रीम है। आप देखोगे मैं प्री एनालिसिस करके कुछ भी नहीं आया था, मोस्ट ऑफ मेरे ट्रेड्स जो हैं वो स्टॉप लॉसेस गए थे, ठीक है। बट स्टिल अगर आप देखोगे इसको मैं अगर ड्रैग अप करूं तो यहाँ पे आपको फिर भी प्रॉफिट दिखेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। क्लोज्ड पोजीशन में अगर आप चल के देखोगे, ये पोजीशन 250 के अराउंड होना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैंने इसको 100 के आसपास बुक करना था, नहीं हुआ, नीचे आके बुक हुआ। ये यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस। इंडिविजुअल ये पोजीशन अकेले आके मेरे को 1:5 दे गया। 5 जो ट्रेड्स हैं मेरे स्टॉप लॉस के सारे कवर हो गए इस इकलौते के अंदर, ठीक है, और बाकी ये मेरा प्रॉफिट रहा। तो अगर सोचो मैं इसको यहाँ पे होल्ड करके 1:5 लेके जाता जहाँ पे तक ये था, ठीक है, 1:4 बुक करता, तो मैं यहाँ पे समवेयर काफ़ी अच्छे बूस्ट अप होता, मतलब 350 या ऐसा कुछ आके, उससे भी ऊपर कहीं कुछ ना कुछ होता। तो मनी मैटर नहीं करता है कि आपकी क्वांटिटीज़, अब देखो मैं कल जाके, अभी मेरे लिए बोलोगे कि ये क्वांटिटीज़ कम है, मैं कल जाके ऑप्शन बाइंग करने वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने सुबह की वीडियो में भी कहा है कि ये क्वांटिटीज़ रिड्यूस्ड इसलिए थी क्योंकि मैं एंटी डिसिप्लिनरी एक्ट पे था, यानी कि काफ़ी डिसिप्लिन लैक कर रहा था, तो पनिशमेंट के तौर पे था। और क्वांटिटी से क्या लेना देना भाई, काम करो, बस लर्निंग करो। इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन। इफ़ यू हैव एनीथिंग, any issue, just let me know in the comment section. I will be there. Thank you. Peace off.